इंट्यूशन इज जस्ट लाइक अ प्राइसी गर्लफ्रेंड। जब आप उसको भाव नहीं देते वो चली जाती है, तो आपको उसको अटेंशन देनी होती है, आपको उसमें इंटेंशन डालनी पड़ती है, तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब आप सोचते हो कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी और आप खा लेते हो, जब आप सोचते हो मैं 5 बजे उठूंगी और आप स्नूज का बटन दबा के सो जाते हो, या जब आप सोचते हो कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करूंगी और मैं नहीं कर पाती, तो ये आपको सीरियसली नहीं लेता। और जब ये आपको सीरियसली नहीं लेता और आप एक गोल सेट करते हो दैट इस साल मुझे 50 करोड़ बनाना है, इस बिजनेस को मैंने सेटअप करना है, और आप इसी को तो बोलते हो ना, तो ये कहता है 50% डिस्काउंट, क्योंकि ये अपनी बात को सीरियसली नहीं लेती। बहुत सारी मेरी ऑफिस की गर्ल्स के साथ ऐसा हुआ है, सडनली फील जस्ट वॉकिंग, जस्ट लाइक पासिंग, ऐसे अपना फोन दिखाना, इज व्हाट हैपेंड, फोन दिखा and I'll just touch the phone और कोई चोरी पकड़ी जाएगी. It's like in nanoseconds this happens. It happens a lot with my daughter also, and she just cries and say, why can't I have a normal mother? जो आ गया वो बोल दिया. अब अगर गलत चिट्ठी आई तो उसको बोलो बोलता मेरा तो कोई रोल ही नहीं. So ना अच्छे में ना बुरे में. I don't take appreciation to my head. I don't take criticism to my heart. मतलब I have never read my comments on any video, any reel. Children know manifestation better than any one of us. They are capable of performing, getting good marks because they want to get a PS5. They just know how. Lack of discipline is not loving yourself. I'm sorry. So that is where the youth or the Gen Z confusion is. I love myself. Why should he ask me to lose weight? You should lose weight. I think Gen Zs need to understand difference between self-love and self-exploitation. My first Louis Vuitton bag I bought. उससे पहले मैंने अपने लिए गाड़ी ली, क्योंकि अगर मैं रिक्शा से और ऑटो से निकल रही हूँ और मैंने उस जमाने में भी 1.25 लाख का बैग लिया था और डेकेड्स बैग, तो वो असली में अपनी नकली लगने लगेगा. सो बिल्ड अप द राइट स्टोरी अराउंड यू. They started with just an idea. The world calls it a startup. They call it a labor of love. Some burned out, some broke through, but every single one had a story worth hearing. This is where founders speak without filters, where investors reveal what they actually look for, where failure is just another chapter. Because no matter where the journey takes you, you're always asking the same question. What next? Hello everyone, joining us today is Dr. Madan. Dr. Madan, thank you so much for taking time out to do this with us. I'm glad, and no 3-minute introductions. Come to the point. Yes, absolutely. Attention span hai nahi. Do you feel energies shift when you enter the room, because people suspect that you might just read everything about the room? I do. I do feel energy of people. I feel energy of places. I feel energy of people and places before and after a good spiritual thing also. I do feel all of it, and I think we all do. हम सिर्फ अपने अपने वाले पे यकीन नहीं करते हैं, मैं करती हूँ. I want to take you back to when you started, when you were, when was the first time you kind of figured that you have a gift? My mother is a Sikh. We've been raised like Sikhs. I still go to Gurudwara on regular or almost everyday basis. तो सिख धर्म में ना, there's not much what do I say importance given to an astrologer or something. तो हमने कभी देखा ही नहीं था. मतलब मैं तो एस्ट्रोलॉजर बनी तो मुझे पता चला कि ओह ये भी हो सकता है. I have just met one astrologer in my life और उसको मैंने बोला मुझे सिखा दो, एंड उन्होंने 5 दिन सिखा के मुझे छोड़ दिया. I was approximately 28 or 29 then. And then everything started on my own पढ़ा journey, and then everything extra unfolded, क्योंकि ये एक जन्म की तो बात नहीं है ना, इतना recently सब कर ये सब हो पाना. Sometimes I answer और मुझे भी हैरानी होती है कि यार ये तो मैंने सुना नहीं, कि मैंने पढ़ा नहीं, ये मैं जानती नहीं. आपको अपने brain की भी तो औकात पता होती है ना. You know where you stand in life, and I'm very good judge of myself. तो मुझे पता होता है कि this is not of my peripheria. So then I know that it is my unconscious mind or my superconscious mind, which is maybe most of the time connected to divinity, helps me to say it. When we all get those moments, हम किसी को मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो हमें लगता है पता नहीं इसकी वाइब्स अच्छी आ रही है, इसकी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है. आप जानते नहीं, उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, but you have a set notion about the person. Yeah. So that is your gut, your intuition talking to you. I think that I realized started talking to me when I was 8 years old. I used to sleep and I used to get things that are happening around in the world. जबकि हमारे कोई ऐसे न्यूज़ का एक्सपोजर नहीं था, कोई खास न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं थी. 8 साल का बच्चा तो क्या ही करेगा. बट आई यूज्ड टू से थिंग्स, एंड समटाइम्स माय चाचा और समबडी यूज्ड टू से कि ये तो पेपर में छपा है, पढ़कर बोल रही होगी. So it was never nurtured with what I had. And it was about other things, like people who... It was always about people. I used to touch people and say, जैसे मैं 6th-7th standard में थी, and I touched my मासी's hand and I said, आपके ना एक दिन घुटने बदले जाएंगे,
तो हंसने लगी। मतलब तब नी ट्रांसप्लांट तो किसी ने सोचा ही नहीं होता था, हमारे घर में तो किसी ने नहीं सुना था। आई ऑल्सो बिकेम अ मे बी अ 20 और 25-year-old गर्ल, ओ ये भी कुछ होता है। सो शी स्टार्टेड लाफिंग एंड शी सेज कब होगा, मैंने ऐसे ही हाथ टच किया और मैंने कहा कि जब आप लगभग 60 years के हो गए ना तब होगा। उन्होंने कहा तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी, ऐसे ही सोचते थे ना तब लोग भी। एंड शी गॉट अ नी ट्रांसप्लांट एंड शी रिमेम्बर्ड, तब तक तो मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई थी। तो वो फिर जो आपकी कहानियां होती हैं आपके आसपास की, आपके फ्रेंड्स की, आपके relatives की, it all comes up on the surface and you look back and you realize that something was working other than your own But you sensibility. said that your parents didn't go to a like an astrologer per se. No. Did they believe it in you that you will be able to do it? So I was married, I had a child, and I was approximately 26, 27, 28 I started professionally. तो मैं मान के चलती हूँ कि 26 साल की उम्र में मैंने किया होगा। तब तक मेरी 4 साल की बेटी थी, 5 साल की। मतलब अब ना बिलीव ना करने वाली तो कोई सिचुएशन ही नहीं थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी ऑन माय 28th ईयर, मैंने गराज से स्टार्ट किया। तो मेरे घर में किसी को नहीं पता था सिवाय माय मदर, नॉट इवन माय फादर। आफ्टर 6 months ऑफ माय प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अ गराज, पीपल यूज्ड टू कम विजिट मी। तब मेरी फीस 500 रुपये हुआ करती थी। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि बेटा तू गुफा में जाकर काम करती है, एटलीस्ट शो योर हस्बैंड और टेल हिम बिफोर, इससे पहले तेरे ऊपर एलिगेशन लग जाएगी। कहाँ चली जाती है 5 घंटे गराज के अंदर, बड़ा मुश्किल होगा। नहीं टू लीव माई डॉटर टू हर आफ्टर स्कूल एंड गो एंड वर्क 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, 7:30-8 बजे तक, कम बैक हो। माई हस्बैंड हैड अ ग्रेट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। सो माई फ्रेंड जिसके साथ मैं शेयर कर रही थी अपना वो गराज का कमरा, मैंने उसको बोला था कि मेरा हस्बैंड आएगा, मैं क्लाइंट बनकर आऊंगी और उसको मैं दिखाऊंगी कि तू एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा अच्छा बताइयो, ये उसकी 20 बातें तुझे पता होनी चाहिए, ये बोल दिया इम्प्रेस हो जाएगा। और मैं वही कहूंगी उसके सामने कि आप मुझे सिखा दोगे, मैं रोज आ जाऊं एंड आप कह देना हाँ आप आ जाओ। मैं पूछूंगी फीस कितनी है, बोला नहीं आप आ जाओ कोई बात नहीं। तो कहती ठीक है। तो मैंने कहा कम से कम मैं 4 घंटे आके काम कर पाऊंगी, क्योंकि वो सुबह काम करती थी और दोपहर के बाद मैं वहां काम करती थी। एक ही छोटा सा कमरा था तो आधी आधी जगह टाइमिंग के हिसाब से शेयर थी। तो मैंने ये पूरा षड्यंत्र रचा अपनी अपनी एस्टैब्लिशमेंट में लेके। प्रैक्टिस तो शुरू थी हाँ। डिक्लेरेशन के लिए। फिर उसके बाद मैंने सेकंड ऑफिस लिया विच वाज बिगर, शंकर रोड पर, बेसमेंट में था, जिसमें 4-5 रूम्स थे बेसमेंट के अंदर, हमने बना लिए थे। तो मैंने 4-5 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर, जिसमें से 3 मेरे स्टूडेंट थे, आई कोलैबोरेटेड विद देम एंड स्टार्टेड दिस होल थिंग। क्योंकि इतने ही पैसे होते थे, इतना किराया कहाँ से देती। एंड आफ्टर दैट आई थिंक 2010 में मैंने स्टार्ट किया। 2013 में मैं शंकर रोड पर आ गई। आई मीन आई नॉट लुक बैक सिंस दैट। राइट। बट यू सेड कि आप ऐसे ही किसी का हाथ छूती थी, बताती थी अभी भी ऐसा ही और वो हंसते थे आप पर। तो वो पहली बार बिलीव कब हुआ कि एक्चुअली आई हैव अ गिफ्ट? मतलब एक होता है क्योंकि सामने वाला कभी को- नहीं हुआ, ओके। कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड व्हेन इट हैपेंड वाज आई वाज अगेन सिमिलर एज, 27 के आसपास होंगी। तो हमारे टेलीविजन पे ना वो चैनल ऐसे ना फ्लिप करते थे, तब टाटा स्काई होता था। तो कभी भी किसी भी चैनल पे कुछ भी आ जाता था, मतलब वो फ्लिकर करके अलग जमाना था। तो वो ऐसे कभी कभी फ्लिप आ जाता। तो एक दिन एक सर्टेन चैनल पे प्रज्ञा चैनल आ रहा था, जो मुझे उससे पहले कभी नहीं दिखा या मुझे पता नहीं होगा। सडनली आई स्टेड देयर बिकॉज जैसे ही मैंने टेलीविजन पे देखा, दिस लेडी कॉल्ड नवजोत सिद्धू, शी वाज अ फ्रेंड, बहुत समय से बात नहीं हुई। उसको बॉयकट बाल थे, वैसे लंबे से इयरिंग्स पहनती थी। मैंने जैसे ही उस स्क्रीन पे देखा, मुझे लगा वो मैं बैठी हुई हूँ एंड मेरी कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी फिजिकल चीज, वेरी लीन एंड बॉयकट, मतलब कोई कुछ नहीं। एंड आई जस्ट कुडंट बिलीव माई आईज एंड आई सेड व्हाट इज दिस। एंड आई स्टार्ट, तब तक एस्ट्रोलॉजी भी शुरू नहीं हुई थी एंड आई वाज जस्ट टीचिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स। कभी कभी जाकर वो वर्कशॉप को पता ही नहीं चलता था ना, 2 घंटे के लिए हफ्ते में जाकर कर कर आ गए, इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया नया शुरू हुआ था। एंड आई kept changing the channel, coming back to it, but I wasn't going off the screen. तो मुझे जब भी इंट्यूशन होती है ना, आई नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, आई एक्ट अपॉन इट। मतलब इमीडिएटली आई एक्ट। अगर मुझे किसी के ऊपर भी हो गई ना, जैसे माई ऑफिस पर्सन, बहुत सारी मेरी ऑफिस की गर्ल्स के साथ ऐसा हुआ है, सडनली फील जस्ट वॉकिंग, जस्ट लाइक पासिंग, ऐसे अपना फोन दिखाना, शी इज व्हाट हैपेंड, मैं कहती फोन दिखा दो एंड आई जस्ट टच द फोन और कोई चोरी पकड़ी जाएगी। इट्स लाइक इन नैनो सेकेंड्स दिस हैपन। इट हैपेंस अ लॉट विद माई डॉटर ऑल्सो, and she just cries and say why can't I have a normal mother, and
बट इट इज़ व्हाट इट इज़. सो दैट आई एक्टेड अपॉन. तो मैं प्रज्ञा का ढूंढा एड्रेस का, ये नोएडा थे. आई वेंट देयर. द चैनल हेड वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शिवानी. सो मैंने वहाँ जाकर बोला कि आई वांट टू मीट द चैनल हेड. शी सेड आपने अपॉइंटमेंट ली? मैंने कहा नहीं, पर मैं मिलना चाहती हूँ. आई वेट टिल शी कम. 15-20 मिनट लगाए. नाइस. शिवानी वाज देन लेटर ऑन वी बिकेम फ्रेंड्स. शी केम एंड सैट विद मी. व्हाट इज इट? ऐसे देखो मुझे ना ऐसा दिखा है. आई हैव दिस. आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग टू हर. तो आई सेड देयर इज सम कनेक्शन एंड वांट टू ट्राई. शी सेड व्हाट डू यू वांट टू डू? आई सेड आपके चाहने पे मेरे लिए क्या स्कोप है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं. शी सेड मिनट ऑफ मोटिवेशन है, 1-1 मिनट का बाइट आता है. आप 10 टॉपिक प्रिपेयर कर लो, मैं आपको शूट कर लूंगी. यू लुक प्रेजेंटेबल, इफ यू स्पीक वेल वी हैव नो इश्यूज. इसके आपको पैसे भी मिलेंगे. तो आप 10 टॉपिक प्रिपेयर करके ले आओ. मैंने कहा नहीं, आपके जो 10 हॉट टॉपिक है ना, आपको जो करना है आप मुझे दे दो. कहती आप अभी शूट करोगे? आई वॉज वेरी इन वाइट शर्ट एंड अ बेज ट्राउजर. मैंने कहा मैं अभी शूट करूंगी. कहती नो मेकअप नथिंग, ऐसे नहीं, लिप बाम मेरे बैग में है, मैं लगा लूंगी, अभी शूट करेंगे. शी सेड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई सेड लुक, इफ इट इज मेंट फॉर मी इट विल हैपन नाउ, और इट्स अ रॉन्ग थिंग. आई डोंट वांट टू डिले इट. मैं 2 दिन बाद ट्रैवल भी कर रही. गिव मी 10 टॉपिक्स. मैंने 10 टॉपिक पे 10 मिनट में शूट किया. नो रीटेक नथिंग. मैं वापस आ गई. बात खत्म. ऑल आई नो इज आफ्टर अ वीक शी कॉल्ड मी. आई वाज आउट कि आप टेलीविजन पे हैं, मैं आपको क्लिप भेज रही हूँ और आपका ये अमाउंट भी बनता है. वो 1800 या 2000 रुपए देते थे पर वीडियो के, मैं दे रही हूँ. दैट वाज माई फर्स्ट इनकम, वन ऑफ द फर्स्ट इनकम फ्रॉम मीडिया. उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर काम करके कमा लेती थी. बट दैट इज इट. देयर इज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट. Take me back to a time when you probably predicted something or thought of something, but it did not work out the way you imagined it. Has it happened? नो, बिकॉज मैं अपने लिए तो आई नेवर प्रिडिक्ट एनीथिंग. आई For anybody else? usually 99.9% it goes in the right way, because my whole idea is that it is a guiding science, not a predicting science. So I tell them कि इसमें हेल्थ का दिक्कत दिख रहा है, इस एरिया में दिख रहा है, ध्यान देना. इसमें चोट लग सकती है, ध्यान देना. ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ. या कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा ये रेमेडी करो, नहीं होगा, वो भी नहीं टला, वो हुआ. सो दिस इज गॉड्स वे ऑफ डूइंग ना. मैंने कभी उस बात को सीरियसली नहीं लिया. ऑनेस्टली हो नहीं हो, मुझे लगता है दिस इज गॉड्स वर्क, Right. है ना. वो बजाने वाला देखिए, इसमें बांसुरी का क्या कसूर. मैं तो पोस्टमैन हूँ, जो आ गया वो बोल दिया. अब अगर गलत चिट्ठी आई है तो उसको बोलो, बस मेरा तो कोई रोल ही नहीं. सो ना अच्छे में ना बुरे में, आई डोंट टेक अप्रिसिएशन टू माई हेड, आई डोंट टेक क्रिटिसिज्म टू माई हार्ट. सो इट डजंट रियली अफेक्ट मी. हुआ नहीं हुआ तुम्हारी, उसकी और तुम्हारी बीच की बात है. आई मीन नथिंग. Yeah. That appreciation to my head, and this is something that actually a lot of people can generally also follow in lives, right? आई ऑलवेज डू दैट. जैसे अब तो है पूरी बाजू के कपड़े पहन रही, और जब मैं नहीं पहनते थे और एक एरा होता है ना, समटाइम्स यू रियलाइज Personal style. एंड यू रियलाइज दैट आई एम अ रिबेल फॉर नो रीजन. कभी कभी एक रिबेल होने की उस समय पर उस सिचुएशन में जरूरत होती है, बिकॉज यू हैव अ पर्पस टू एस्टैब्लिश समथिंग, एंड देन लेटर ऑन यू रियलाइज कि मैं अकेली तलवार चला के जा रही हूँ, ना कोई दिक्कत है ना कोई situation. rebel Yeah. खड़ती के. Yeah, I am straight here rebel, but now as you mature, you realize that it's not necessary. मतलब one can be assertive without being aggressive. One can be, very flexibly fixated also. And that is what I've learned now. तो जब मैं वो वैसे रिबेल फेज में थी, तो अभी भी मतलब आई हैव नेवर रेड माई कमेंट्स ऑन एनी वीडियो, एनी रील, या मैंने कभी बैठ के भी नहीं देखा होगा पूरा कि अब मैं बैठूं और अपनी बुराई निकालूं, ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, ऐसे नहीं था ना. मैंने दोबारा नहीं देखा. अब आपका ये शो आएगा, ये मुझे टीजर दिखा देंगे और पूछेगी कि मैम कोलैबोरेट कर लें, तो मैं कहूँगी हाँ कर लो. इसके बाद मैंने जो चीज जिंदगी में ठीक नहीं हो सकती ना, उसको मैं मुड़ के नहीं देखती. तो मैं सिंपल सा हूँ. अब आप क्या कमेंट्स डाल रहे हो, माई मदर इज वेरी यूज टू इट. शी विल रीड इवन इफ देयर 5000 कमेंट्स, शी विल गो थ्रू 5000 कमेंट्स. फिर उसमें जो उनको पसंद आएंगी वो उसका फोटो का स्क्रीनशॉट लगाएंगी और मुझे फॉरवर्ड कर देंगी. दैट इज द इंफॉर्मेशन नेट बैंक आई हैव. तो अब उसमें कोई खराब होता है तो मेरी टीम भी भेज देती है, बट आई डोंट रिमेन अफेक्टेड बाय इट. मतलब आई नेवर से इसको डिलीट करो या अगली बार ये चीज मत करो. मुझे लगता है तुम्हारी सोच है, मेरा सच नहीं. एंड यू हैव कंप्लीट राइट टू एक्सप्रेस, एंड यू ओनली एक्सप्रेस द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. Right. तो मतलब मुझे एक्चुअली उसका फर्क नहीं पड़ता. मतलब एक चीज जो आई थिंक बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज कर लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड
Probably psychic abilities. क्योंकि intuition मुझे भी ऐसे बहुत बार लगता है कि ये शायद होने वाला है. इंट्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं होती, साइकिक एबिलिटी आपके कंट्रोल में होती है, पर होती इंट्यूटिव ही है. सो इट्स जस्ट दैट जब इंट्यूशन आपके हिसाब से चलने लग जाए कि अरे अब मुझे इस सिचुएशन में ये चीज बतानी है, आई हैव टू गाइड देम, आई हैव टू गिव देम क्लैरिटी, तो वो आपका अपना डिसीजन है फॉर द मोमेंट. ये साइकिक एबिलिटी है. अब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, होता है ये अगली बॉल पे बोल्ड हो जाएगा, ये इंट्यूशन है, ये आपके कंट्रोल में. जब आप इसकी ज्यादा सुनना शुरू कर देते हो तो साइकिक बन जाती है, जैसे छोटी बच्ची बड़ी हो गई. So if a young person is watching this and they think that they, every time they think about something, it tends to happen, how do they actually tap into themselves and figure if there is a gift with them? It is already a gift. If every time you think or you dream of and things happen, that means it's a gift. All you need to do is just clean it up nicely and place it at a nice place. Intuition is just like a pricey girlfriend. जब आप उसको भाव नहीं देते वो चली जाती है. तो आपको उसको अटेंशन देनी होती है, आपको उसमें इंटेंशन डालनी पड़ती है, तो इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है. Right. But these worldly things affecting youngsters, ये social media हो गया, अगर scroll करे जा रहे हैं, उससे तो, I mean, there's a lot of distraction. So then how does one tap into themselves then? So आप सोशल मीडिया का टाइम, इट्स नॉट बैड, इट्स ग्रेट, बट यू हैव टू डिसाइड अ टाइम फॉर इट. जैसे जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य क्रिएट कर रहे थे, व्हेन ही वाज क्रिएटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट डायनेस्टीज एंड एन अमेजिंग एम्परर आउट ऑफ नोवेयर, तो बड़ा सेट सिस्टम था. डिसिप्लिन आपको लाइफ में सक्सेस के करीब ले जाती है. आप जरूर सोशल मीडिया देखो, गिव योर सेल्फ टाइम कि मैं जितनी देर वॉशरूम में हूँ उतनी देर में फालतू रील स्क्रॉल करूंगी, जितनी देर में ऑफिस में हूँ उतनी देर में राइट कंटेंट स्क्रॉल करूंगी. सो इवन इफ यू आर अडिक्टेड टू इट, दिस नो प्रॉब्लम. एडिक्शन की भी डिविजन एंड बना लो. एनीथिंग दैट यू कंट्रोल, यू बिकम मास्टर ऑफ इट. एंड द ओनली गेम इन लाइफ इज टू बिकम मास्टर ऑफ, नॉट अ स्लेव ऑफ योर ओन माइंड, ऑफ योर ओन हैबिट्स और ऑफ योर ओन एडिक्शंस. आप 5 घंटे स्क्रॉल करो इंटरनेट, कोई बात नहीं, अपना स्क्रीन टाइम मत कम करो, उसको डिवाइड कर लो कि जो 2 से 3 मेरा स्क्रोलिंग टाइम है ना, इसको मैं इस कंटेंट में करूंगी. शाम हो गई, आई एम लेजी एंड आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश माई सेल्फ, इसमें मैं फालतू कचरा हंसी वाली रील्स देखूंगी. द मोमेंट यू ब्रिंग डिसिप्लिन इनटू इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज आल्सो, यू जस्ट स्टार्ट गेनिंग कंट्रोल ओवर लाइफ. सी आपका ब्रेन जो है ना, ये आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, आप चाहो या ना चाहो. जब आप सोचते हो कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी और आप खा लेते हो, जब आप सोचते हो मैं 5 बजे उठूंगी और आप स्नूज का बटन दबा के सो जाते हो, या जब आप सोचते हो कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करूंगी और मैं नहीं कर पाती, तो ये आपको सीरियसली नहीं लेता. और जब ये आपको सीरियसली नहीं लेता और आप एक गोल सेट करते हो दैट इस साल मुझे 50 करोड़ बनाना है, इस बिजनेस को मैंने सेटअप करना है, और आप इसी को तो बोलते हो ना कि मुझे ये करना है, तो ये कहता है 50% डिस्काउंट, क्योंकि ये अपनी बात को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि आपने उसको आदत ऐसी डाली है कि जो मैंने बोलना है वो मैंने नहीं करना है. सो वेन एवर यू से समथिंग दैट यू रियली वॉन्ट टू डू, दिस वन डजंट कोऑपरेट विथ यू. सो द होल पॉइंट इन लाइफ इज कि जब ये आपको सीरियसली लेना शुरू कर देता है तो आपकी दुनिया बदल जाती है. देयर इज नो अदर वे. Right. And how much do you think luck has a factor in this? Luck is opportunity, but only when opportunity meets preparation is where magic happens. आपके पास अपॉर्चुनिटी आई कि प्रधानमंत्री इस कमरे में आ गए और आपके पास 30 सेकंड है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट इफ यू आर नॉट शार्प इनफ, इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट, इफ यू आर नॉट विटी, इफ यू डोंट नो व्हाट टू लीव ऑन द टेबल, ही विल नेवर सी यू अगेन. सो वो अपॉर्चुनिटी को आपकी प्रिपरेशन मीट करेगी, तब तो बात खुलेगी. खाली चाबी लिए क्या कर रहे हैं, उसको घुमाना भी तो होगा. Do you think manifestation, or probably not doing it right, is making younger people confused? Because आजकल हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, बहुत बहुत से लोग बता रहे हैं आपको इस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये करिए ये करिए. So do you think not following correctly and not having the discipline that you just mentioned ends up with people being confused, especially youngsters, because they think that manifestation is a shortcut? Confusion is very important in life because confusion is mother of clarity. उसके बिना हमें पता ही नहीं चलता हमें चाहिए क्या. Manifestation comes from a Latin word which means manifestus. Manu means hand and festus means to grip. तो जो चीज आप हाथ से पकड़ सको, यानी कि जो साक्षात है, वो manifestation है. That was the actual meaning and that is still the literal meaning. जिस चीज को आप, अगर ये माइक है तो ये आपके लिए भी माइक है, ये मेरे लिए भी माइक है, ये ऑडियंस के लिए भी माइक है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी और कैमरामैन के लिए भी. कोई नहीं बोल सकता कि ये माइक नहीं है.
दिस इज समथिंग विच इज मैनिफेस्टेड। अब ये कभी किसी की सोच रही होगी कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो चेहरे के पास हो और जिससे वॉइस क्लियरली रिकॉर्ड हो जाए। तो उसकी सोच ने एक फॉर्म लिया, तो उस इंसान ने जिसने माइक क्रिएट किया होगा, डेवलप किया होगा या इन्वेंट किया होगा, दिस इज हिज मैनिफेस्टेशन एंड आर यूटिलिटी। राइट। सो जिस भी चीज को हम साक्षात क्रिएट कर लेते हैं, फिर चाहे वो नंबर हो, पैसे में, स्टेटस में, वो चीज मैनिफेस्ट होती है। अब प्रॉब्लम है कि लोग मैनिफेस्ट करते हैं, हम कहते हैं आई वांट टू बी हैप्पी। नाउ हाउ कैन यू बी हैप्पी 24/7? इट इज नॉट पॉसिबल अनटिल यू आर नॉट हाई ऑन ड्रग्स। आई वॉन्ट नो स्ट्रेस इन लाइफ। हाँ, वो कैसे होएगा? मतलब आप वॉशरूम में जाते हो और आपने एक रात पहले छोले भटूरे खाए हैं तो आप स्ट्रेस होगा। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली ओके। मैनिफेस्टेशन ओनली हैपेंस व्हेन यू हैव क्लैरिटी अबाउट SMU, which is specific measurable unit. I want to be rich. Great. How much? What is your number? एक रिक्शे वाले के लिए रिचनेस का अलग पॉइंट है, आपके स्टाफ के लिए अलग पॉइंट है, आपके लिए अलग पॉइंट है, आपके बॉस के लिए अलग पॉइंट है। आपका पॉइंट क्या है? कब तक? The more precise you are, the more chances of its happening happens. इसीलिए मैनिफेस्टेशन को विजुअलाइजेशन से जोड़ा जाता है। इसका और कोई पर्पस नहीं। पर्पस ये है कि जब आप कोई चीज विजुअलाइज करते हो तो आप उसको क्लियरली, सेंसिबली देख पाते हो। जैसे अगर आप किसी को प्यार करते हो, if you're in love and you want to imagine the other person, then you'll imagine it with completely clarity. I'm wearing this nice red dress, my shoulders are like that, my skin is like that, he held my hand, I looked into his eyes, he kissed my hand, there's this candlelit cake, flowers. This imagination has every factor. This is very precise. जितना precise उतना ही specific measurable unit. Now, if a girl is imagining and doing that, they'll say, listen, tell me, टेबल पे कितने roses दिख रहे हैं? She'll immediately and tell me, इस side, right side पे पूरे roses भरे हुए। ऐसे अच्छा ठीक है, उसने किस कलर की शर्ट पहनी हुई है? She'll say, उसने white कलर की शर्ट पहनी हुई है। ऐसे डोकी ठीक है, उसके बाल पीछे है कि थोड़े थोड़े गिर रहे हैं? She will get to the exact precise details. That's what we do when we are in love. तभी तो हम उसके ना होते हुए भी उसको सोच पाते हैं। This is manifestation. Until it's not specific, it's not going to happen. But is too much information around it confusing people? That's what I meant to ask. No, because you don't know exactly what you want. Information is not wrong. How much are you processing and utilizing it was as important in life. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें 17, 18 या 22 पेज है, तो आप हर हेडलाइन को तो नहीं पढ़कर एक एक लाइन पढ़ सकते हैं। आपने पूरे पेज को स्क्रॉल किया, इसमें से 2 टॉपिक अच्छे हैं, इसको पढ़ूंगी, इसमें से 4 लाइन पढ़ूंगी। यू कंप्लीटली फिल्टर हाउ मच यू वांट। फिल्टर हाउ मच यू वांट, अवेलेबिलिटी तो हमेशा रहेगी। जितना पेट है उतना ही तो खाओगे, बुफे थोड़ी ना पेट पे लगा लोगे। Absorb what is relevant and what is important. Right. And why do you think it's become the buzzword right now? It has always been. जो हम पुराने सीरियल देखते थे, महाभारत देखो, रामायण देखो, ऋषि ने तपस्या की, भगवान आए और बोला तथास्तु, ये दे दिया। ये मैनिफेस्टेशन ही तो थी। मुझे ये चाहिए, मैंने इसके लिए एक्शन लिया, मैंने इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो किया और मुझे वो मिल गया। मैंने कहा कि मुझे 4 बेटे चाहिए, मैंने कहा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए, मैंने कहा कि मुझे किंगडम चाहिए, मैंने कहा धर्म स्थापित होना चाहिए। दिस इज ऑल मैनिफेस्टेशन। Otherwise, it wouldn't have happened. It has always been there. It's just that now we are talking more about it. ये तो हमेशा से ही था और चला रहेगा। और आपको क्या लगता है कि मिसकंसेप्शन क्या है मैनिफेस्टेशन के अराउंड? बहुत सी चीजें लोग बोलते हैं कि इस तरह मैनिफेस्ट करो, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, दिस इज व्हाट यू शुड नॉट बी सेइंग। Are there any misconceptions around it? Is there a right way to do it? So, your brain doesn't believe in past or future. The subconscious mind only believes in present. So the first important thing is कि जब तक हम उसको अभी नहीं सोचेंगे, अभी नहीं ऑब्जॉर्व करेंगे, अभी नहीं उसके जैसा एक्ट अपॉन करेंगे, तब तक वो नहीं होगा। बिकॉज कल तो आता ही, सबकॉन्शियस को समझ ही नहीं आता। अब मैं अपने पेट को कितना भी समझा लूँ कि देख, मैंने कल सुबह लंच पे जाना है, वो ना बड़े अच्छे से डाइजेस्ट करनी हो कि मैंने पिज्जा भी खाना है, मैंने नूडल्स भी खानी है और मैंने दाल मखनी भी खानी है, तो बेचारे को नहीं ना समझ में आएगा। जब वो अंदर जाएगा तभी वो डाइजेस्ट करेगा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है हर चीज को प्रोसेस करना, और प्रोसेस तो उसी टाइम पर हो सकता है, इसकी पहले की तो कोई प्रिपरेशन नहीं है। सिमिलरली जब हम अफर्मेशन फ्यूचर के देते हैं तो बेचारे को समझ ही नहीं आता मुझे करना क्या है। उसको लगता है मैं कौन सी विंडो में डालूं, उसके पास वो ब्रैकेट ही नहीं है, वो कबर्ड ही नहीं है जिसमें वो ये डाल सके सिस्टम, तो सारा फ्लश आउट हो जाता है, एक्स्ट्रा फूड। तो यू हैव टू ओनली talk about present, you have to consider it's in present and you have to bring it into your present. फ्यूचर में आप उसको फील कर सकते हो क्योंकि आपको पता है
कि ये नहीं है, but fake it till you make it is the only way to make it happen. Right. A little while back, you spoke about being rich and how the definition of rich is different for different people. Now, say for instance, there is a person. A person could belong to any class of society, and they want to manifest richness. Okay, they know exactly how much money they want. But why is it that with some people, they don't feel okay saying that amount or, feeling that they'll be that rich? Why is that? You're married? No. Do you have a boyfriend? Yes. If you want a particular thing with your boyfriend, say suppose you want to go on a holiday or you want him to say certain things to you or act in a certain moment, you think it is important to tell him कि ये करना है और ऐसे मुझे चाहिए, right? इसका बिना Absolutely. कैसे possible है ना? He does. He's not a mind reader. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बताना, उसको एक्सप्रेस करना कि मुझे ये ऐसे चाहिए, मुझे ये ऐसे करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सही नहीं लगता अपने परफेक्ट को बताना कि यू नो व्हाट, माय लव लैंग्वेज इज गिफ्ट्स and I'll be very happy if you do something special on my birthday. I'll be very happy if you gift me a tot. Doesn't matter वो कितने का है, but this is my love language. तो बेचारे को कैसे समझ में आएगा? वो अपनी तरफ से आपके लिए केक बनाकर लेकर आओगे, आपको कितना फालतू पागल को समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या देना चाहिए. So it's so important to communicate, to express, to tell. Similarly with people also, with every situation, the right expression is very important. नहीं तो वो result नहीं हो पाता वो. It is humanly not possible to derive things out of it. Tell me then, how do you explain manifestation to somebody very young? They know that probably उनको ये करना है, उनको discipline रहना है, उनको एक तरह से चीज manifest करनी है. They have to feel, say it. But how do you tell them what this is? Anybody below their puberty age manifests better than any one of us. Oh, really? या आप एक छोटे बच्चे को आपसे फोन लेना है, उसको राइट टाइम पता है, उसको पता है कि आप कब मीटिंग में हो. अरे ये तो मैनिपुलेशन है. दिस इज मैनिफेस्टेशन. हाँ. उसको समय पता है और उसको जो चाहिए वो पता है और उसको किससे मिलेगा ये भी पता है. तो ये कैसे मैनिपुलेशन है? इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. आप मैनिफेस्टेशन बोल रहे हो, मैं तो इसको मैनिपुलेशन. एब्सोल्युटली नॉट. मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाए, यही तो मैनिफेस्टेशन है ना. तो इसी की तो हम बात कर रहे हैं. सो दे नो इट. उनको पता है कि हाथ खींच लेना है, फंक्शन के बीच में डिस्टर्ब कर देना है. राइट एक्शन, रोक के दिखा देना है. right moment, right strategy, and where to get it from. That can be the quickest and the fastest manifestation. अगर आपको पता हो कि मेरे को प्रमोशन चाहिए और आप अपने बॉस को सीधे मुंह ना बात करो, तो कोई ताकत आपको प्रमोशन दे सकती है? कैसे पॉसिबल है? अगर आपको पता हो कि ये मुझे पसंद करने लग जाए, इसको जो पसंद है मैं वो बात करने लग जाऊं, मैं इसकी कही हुई बात को पूरा करूं और इसको मेरा काम दिखने लग जाए. This is where the manifestation will happen. That's a strategy around what Right. you want. Right. That is exactly process of manifestation. और जब आपको एक क्लैरिटी आ जाती है तो समझो भगवान आपके साथ है. Because otherwise तो लोगों को समझ नहीं आता कैसे चाहिए. So children know manifestation better than any one of us. They are capable of performing, getting good marks because they want to get a PS5. They just know how. It's just that वो किसी ऊपरी शक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है. वो सही शक्ति पर डिपेंडेंट है जहां से उनको मिलेगा. So you are saying that abide by that same discipline that a child We would always do. had it. जब हमें स्कूल नहीं जाना तो हमें पता कौन सी वाला दर्द हमारी छुट्टी कराएगा. So that is manifestation. What you want and it actually happens is what you're manifesting. इसी की तो बात कर रहे हैं. उनकी छोटी चीजें हमारी चीजें बड़ी है. हो तो वैसे ही रहा है. Right. थोड़ा करियर की तरफ पिवट करते हैं. A lot of people now, youngsters, millennials, Gen Z, are looking for career change probably. You know, they've done something for 3-4 years of their life. They feel that it's not right for them. So say if somebody is 24, 25, they want to pivot towards another career. How do they manifest the right thing for themselves? And how do they gather the confidence to make that change? So in that way, you know what I tell people, astrology has been very helpful for people and I feel that कभी कभी ना हम ट्रांजिट फेज में होते हैं. जैसे आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया तो कभी कभी ट्रेन में ना अंदर वो लेकर आते थे खाना. फिर वो जब आप और थोड़ी नॉर्मल ट्रेन में करो ना, तो जैसे आगरा रुकी ट्रेन तो वो वहाँ का पेठा बड़ा अच्छा है, वो कभी अंदर ले आएगा कभी नहीं लाएगा.
तो लोग ना स्टेशन पे रुकती थी जब ट्रेन, तो उतर के जाके सामान लेकर आ जाते थे। तो कभी कभी उसमें ट्रेन छूट भी जाती थी जब लंबा चक्कर वक्कर काट रहे हैं, कभी भाग के दूसरे डिब्बे में चढ़ जाते थे और कभी टाइम से आ जाते थे। 3 सिचुएशंस ऑफ गेटिंग डाउन। करियर में भी कभी कभी ऐसा होता है। समटाइम्स यू नीड टू बी वेयर यू गेट डाउन समवेयर, डू अ लिटिल वर्चुअल थिंग और अ वर्चुअल शॉपिंग और अ शॉपिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल कि अच्छा मैं ये भी ट्राई कर लूँ, ये भी ट्राई कर लूँ, एंड गेट बैक टू द ट्रेन बिकॉज दिस इज नॉट राइट। एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू टेल यू कि ये आपका स्टेशन आ गया है, अब ये सही टाइम है, टेक दैट लीप, जंप, गो हैड विद दैट। और इट टेल्स यू यार ये 1.5 साल ठीक नहीं, मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन बड़ी अच्छी हो रही है, जॉब मत छोड़ो और बिजनेस ट्रायल कर लो। और कभी कभी इतना एविडेंट होता है कि बड़ा नुकसान होता है और आदमी को इच होती है, क्योंकि जब टाइम खराब होता है ना तो सबसे पहले बुद्धि खराब होती है। सो देन वी टेल देम यू नो व्हाट, बिजनेस करना है ना, ट्राई, कोई बात नहीं, कर लो, बिना पैसे लगाए बिजनेस करना, पिक अप कंसल्टेंसी और हैव अ फिक्स्ड कैपिटल या स्टॉक्स में कर लो, अपने अमाउंट को मत बढ़ने देना, कमा के जो मर्जी लगा लेना, कमाई होती ही समझ में आ जाता है, तो लेसर कैपिटल में नुकसान निपट जाता है। सो इन दैट डायरेक्शन रियली हेल्प्स यू टू सी कि ये मेरा स्टेशन आ गया है कि मुझे पेठा लेकर वापस अंदर आ जाना है। दैट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। But why does it happen that, I might go to, say, 2 astrologers, 3 astrologers. Everybody will probably tell me different things. Why is that? If astrology is science, shouldn't there be one solution for it? आपकी फादर की क्या एज है? 65. कभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट कोई खराब आती होगी तो आप एक डॉक्टर को कंसल्ट Consult करते हैं, करते हैं। दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, फिर एक डॉक्टर एक मेडिसिन लिखता है, दूसरी लिखता है, एक दूसरा डायग्नोसिस करता है, एक तीसरा डायग्नोसिस करता है, तब तो हॉस्पिटल भी चल रहा है ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अगर मेडिकल साइंस एक ही साइंस है, एक ही शरीर है और एक ही बीमारी है, तो एक डायग्नोसिस क्यों नहीं होता? क्योंकि परसेप्शन वो तो बट क्या नहीं, मैं बोलूंगी तो पता नहीं आपको कैसा नहीं, लगेगा। मुझे बिल्कुल खराब। सब खुद धंधा कर करेक्ट। और सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी शफा है। सो कई बार हम, हमारे जीपी भी होते हैं ना, किसी को गायनिक प्रॉब्लम भी होती है तो भी वो जीपी से ही जाकर दवाई लेती है, क्योंकि उसको उसकी दवाई लगती है। इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ फेथ, यू सी, नो मैटर, मेडिकल साइंस इज अ कंप्लीट साइंस, बट वी प्रेफर गोइंग टू द पर्सन जिससे हमें पहले रिलीफ आया हो। अगली बार आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन तब तो रिलीफ आया था ना। सो इट इज फेथ कंबाइंड विद द परसेप्शन ऑफ अदर पर्सन। देखने वाले की भी तो अपनी नजर है ना। एक हिल स्टेशन को 10 पेंटर जाकर देखें तो 10 एक ही पहाड़ की अलग अलग तरीके से पेंटिंग बनाएंगे, नजारा वही है, नजरिया बदल जाता है। इट इज सेम विद एनी साइंस और एवरी साइंस। तभी तो लोग जब कोर्ट केसेस में फंसे होते हैं तो 4 लॉयर को ओपिनियन लेते हैं, भैया जब एक ही फैसला होना है तो एक लॉयर से ओपिनियन क्यों नहीं ले रहे हो? ऐसा नहीं होता। द परसेप्शन इज वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड विच इज ऑफ अ कंसल्टेंट। दैट इज वॉट मेक्स एवरीबडी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, नो? What would you tell someone who doesn't believe in astrology at all? There are a lot of people who don't. So then there are बहुत beautiful sciences like DMIT is one of the sciences जहाँ पे आप अपने अंगूठे की और उंगलियों के प्रिंट दे देते हैं, and it's a science which is absolutely scientific, and through your imprints of fingers, the data, the software tells you that you're more analytical, you're more this, you're more that, this is the kind of things you should do. कई बार हम ऐसे भी बिजनेस करना चाहते हैं which is rush of the blood. स्टार्टअप का ट्रेंड है तो सब स्टार्टअप का करिए। अरे अगर तुम में एनालिटिकल कैपेबिलिटी नहीं है तो कम से कम एनालिटिकल पार्टनर तो ले आओ। अगर टेक का बिजनेस है, इट जस्ट ब्रिंग्स योर फोकस बैक टू योर सेल्फ, कटिंग ऑल द इल्यूजन्स। दैट्स व्हाट एस्ट्रोलॉजी आल्सो डज, कि देख तो ले है कौन। मतलब अगर कोई 100 किलो की लेडी खड़ी हो जाए कि मैं मिसेस इंडिया में जाऊंगी, तो उसको कोई तो बोलेगा ना, भैया वजन तो कम करो, माना तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी है बट कुछ बॉडी भी तो चाहिए, कपड़े पहन के रैंप पे चलना भी तो है। सो इट्स फाइन, इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग, इट इज अबाउट bringing yourself into the fittest possible avatar If that you is aspire possible. to do If that. you aspire to do that, because it has to make you feel good and the other person also looking at you feel good. Right. You know, अपने शरीर का बेडॉल बनाकर अगर आप इसको बोलते हो that I love myself, that's stupidity. Having rasmalais and butter chicken and gulab jamun is not loving yourself. Bringing yourself to diseases is not something that you should be proud of. Yeah. If there is no discipline to keep yourself in the fittest possible way, अंदर तो भगवान किसको क्या बीमारी देते कोई नहीं जानता, बट बाहर से तो कोशिश कर लो भाई। So lack of discipline is not loving yourself. I'm sorry. So that is where the youth or the Gen Z confusion is. I love myself. Why should he ask me to lose weight? You should lose weight. For God's sake, and everybody on the earth should lose weight. I try and put myself to so much of it that I have to lose 2 kgs of weight.
Everybody has to and should take care of their body because that's the first gift universe gave you. आपको मैं गिफ्ट दूं और आप उसको धूल मिट्टी में डाल दो, कचरे में डाल दो, तो मैं आपको दोबारा कभी गिफ्ट ना दूं. उस बेचारे ने आपको इतना अच्छा बनाकर भेजा. The God would up be looking down and saying, मैंने किया क्या? What have they done to what I gave them? Just take care of this beautiful gift that is gifted to you. Because anything spiritual, materialistic, love, happiness that you're going to experience, it's going to experience through this body. For God forbid, take care of it. घर की सफाई से पहले इसकी सफाई करो. And this is self-love. You know, transformation and evolving is self-love. Accepting is not self-love. मुझे बुखार है, I love myself, मैं पैरासिटामोल नहीं खाऊंगी. Does that make sense to you? It's so stupid. भगवान ने वायरल फीवर दिया है, तो भी तो दवाई खाते हो ना. तो भगवान ने शरीर दिया है, ऐसा मैं ऐसे ही रहूंगा, क्या मतलब है? Find solutions to it. Bring discipline to it. Bring activity. Doesn't matter आप मोटे हो या पतले, आप फिट होने चाहिए. आप चलो, आपका सांस नहीं फूलना चाहिए, आपकी बॉडी में डिजीज नहीं होना चाहिए. I think Gen Zs need to understand difference between self-love and self-exploitation. Yeah. A lot of Gen Z are also leaning towards astrology. Do you think it can be a replacement of therapy? It has always been. हमारे यहाँ तो psychiatrists थे ही नहीं. Thanks to America and Europe कि हमने ये शब्द सुना. We never spoke about therapists. Then astrology is 90% of therapy if you get a good person. Even if something bad is going to happen to you, you need somebody to tell you that, look, nothing stays, ये वक्त भी निकल जाएगा. You know, आपको अगर कोई बीमारी भी होती है तो आपको डॉक्टर भी ऐसा हंसता हुआ चाहिए होता है कि यार 2 मिनट के लिए मीठा बोल दो और बोल दे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, हो या ना. So at any point of time, we need that comfort from the other person. Astrology has been our only way over and over from centuries. So basically, it's the better therapy you could get? It's a non-addictive therapy. दवाइयाँ नहीं मिल रही. ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाओगे, स्ट्रीट पर काले चने बांटोगे, लोगों को 4 चप्पल दे दोगे, पीपल को जल दोगे, भगवान के पास जाकर फल चढ़ा दोगे, किसी बंदर को केला दे दोगे. इसमें क्या खराब बात है, मुझे बताओ. Rather than taking those sleeping pills and lying on the bed for 14 hours, what sense does it make? Does it add any value? Tell me, a lot of successful people, successful, rich, happy people also still resort to astrology. सब है उनके पास, क्या डायरेक्शन चाहिए, क्यों होता है ऐसा? Direction is sustenance चाहिए. I went to Jagannath temple. तो वहाँ पर you go to the Devi temples, and from both the Devi temples, one represents Durga, which is a form of Rukmani, and one represents Lakshmi. So you go to both the temples. एक बलराम जी की वाइफ है और एक कृष्णा की. So when you go there, आप दोनों टेम्पल्स के बाहर आते हो माथा टेक के, और आकर आप उधर ड्राइंग बनाते हो ऑन द दीवार, एंड देन यू सिट डाउन फॉर 2 minutes. द होल पर्पस इज दैट व्हेन यू गेट पावर, you need time and patience and discipline to sit and absorb it. And when you get money, similarly, you need time, you need patience, and you need discipline to absorb it. It's a simplistic way of telling your mind कि जब आप पावर मांगने जा रहे हो और जब आप डिसिप्लिन मांगने जा रहे हो, आओ, ठहरो, रुको, absorb करो, settle और फिर चलो. That's what you need to do at every promotion. That's what you need to do at your power position. That's what you need to do when you get good profits. This is what I've acquired. All right, now this is what I need to do with it. तैश में जब भी कोई डिसीजन होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि पावर का और पैसे का बेसिक तत्व है फिसल जाना. You know, these are active राजसिक energies. जब तक आपको उनको पचाना नहीं आएगा, तब तक आप इसका कोई बेनिफिट नहीं है, आएगा और निकल जाएगा. आप डेटा उठाकर देखिए कि जिन लोगों की मैक्सिमम लॉटरीज निकली, इंक्लूडिंग केबीसी, एंड वो गॉट दिस विंडफॉल मनी, 5 साल में 7 साल में खत्म, बर्बाद हो जाती है. इसीलिए क्योंकि पैसे का होना और पैसे का पचाना आर 2 डिफरेंट थिंग. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लक्ष्मी दास एंड लक्ष्मीवान. जब आपको किसी चीज को अब्सॉर्ब करना नहीं ना आता तो वो टिकता नहीं. So these people come and speak to the consultants like astrologers like us to understand कि हम सही से बचा रहे हैं ना, are we on the right track ना, हम कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जो हम ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहे हैं. So that the other person from neutral perspective who doesn't know you tell you कि आप ये 4 चीजें खरीदने का तो नहीं सोच रहे, जरा रुक जाइए, रीस्टडी कर लीजिए. It brings you back to neutrality where you self-reflect. And do you think you can be successful without being spiritual? कुछ नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन है मेरे पास, मेरा हार्ड वर्क है, एंड
can be successful. Of course you can be. Being successful is getting what you want and being happy is wanting what you have. जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो आपको हैप्पीनेस और सक्सेसफुल दोनों साथ में मिल पाते हैं, which is what gratitude is all about. The whole book magic or the gratitude is the science which is the highest brain frequency that one can vibrate on. तो जब आप शुक्राना में या थैंकफुलनेस में आते हो तो that becomes a great vibration for your brain to think positive, think aligned. जैसे अगर आप मुझे यहाँ पर मिले आपको को यू लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड यू कीप सेइंग दैट, यू स्टार्ट फीलिंग गुड आफ्टर 2-3-4 minutes बिकॉज आई एम सो थैंकफुल टू यू. तो जब हम कुदरत से नेचर से थैंकफुल होते हैं तो हमारा ब्रेन जो है ये एक लोअर लेवल से हायर लेवल पे चला जाता है. फिर हमें चीज़ों में ऑप्टिमिज्म, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा माइंडसेट, अच्छे लोग, अच्छी वाइब्रेशन देखने लगते हैं. जब हम रेगुलर उस फ्रेम पे रहते हैं तो परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं. जैसे अगर आप कभी पुरानी दिल्ली में रहते हो और फिर आपके पास पैसा आ जाए और आप साउथ दिल्ली चले जाएं, फिर आपके पास और पैसा आ जाए, आप लुटिन दिल्ली चले जाएं, फिर आप अचानक ओल्ड दिल्ली जाएंगे जहाँ आप रहते थे 15 साल पहले, लेकिन आपको लगेगा ना कि मतलब पता नहीं मैं कैसे रहती थी यहाँ, अब नहीं रह सकती, अब नहीं हो सकता ही, बिकॉज यू एलिवेट इन योर स्टेचर, यू एलिवेट इन योर कंफर्ट. सिमिलरली वाइब्रेशनली ऑल्सो यू एलिवेट. जब आप जिस वाइब्रेशन में, जिस भाव में ज्यादा रहते हो, आप वैसे ही हो जाते हो. फिर आपके वैसे ही दोस्त होते हैं, वैसे ही पड़ोसी होते हैं, वैसे ही गैदरिंग होती है. फिर जब आप पीछे नेगेटिव लोगों को देखते हो तो आपको लगता है हाय राम, कभी मैं भी ऐसी थी, मेरी भी ये जर्नी थी. एलिवेशन इज वॉट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन. Right. And do you think you can be ever too spiritual? Can you ever be too rich? I mean, if you can't Don't handle have the the money. There's nobody who got. People believe they can handle the money. फिर चाहे घर में कलेश हो, बच्चे आपके मरने की वेट करें, पर आपको पकड़ के रखना अच्छा लगता है. But Dr. Madhan, ये बताइए, जैसे if I am spiritual, would I need others around me also to be spiritual? Because I would want to, hang out probably with same kind of people. ऑटोमेटिकली जो काम करनी है वो छूट जाता है. जब आप सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहते हो ना तो आपके यहाँ पे मक्खी मच्छर आते हैं, चूहे भी आ जाते हैं. जब आप 40th फ्लोर पे रहते हो ना तो ना चूहे आते हैं, ना मक्खी आते हैं, ना मच्छर आते हैं. अलग चीजें आती है बट ये नहीं आता है. जब आप मेंटली एलिवेट हो जाते हो ना ऑटोमेटिकली मक्खी मच्छर निकल जाते हैं. नेगेटिविटी रहती ही नहीं है आसपास बिकॉज आप रिलेट ही नहीं कर पाते. अब आपसे बैठकर गॉसिप ही नहीं होगा तो आप और आपका दोस्त करोगे क्या? इट ऑटोमेटिकली चेंजेस. Right. एक तो हो गया astrology, when somebody comes to you and they seek direction, they seek understanding of what they are going through. And then we see, weekly astrology predictions, right? Weekly, monthly. आजकल tarot भी बहुत popular है as a, form of fortune telling. What do you think? Is that true? इसके दो एस्पेक्ट है. एक, आपका चैनल कैसे चलेगा अगर ये नहीं होगा? I love brutal honesty. डेटा अब्जॉर्प्शन होती है ABCD and P. दिस इज अ डेटा अब्जॉर्प्शन. एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट, डिवोशन एंड पॉलिटिक्स, हम यही डेटा अब्जॉर्ब करते हैं. तो दिस इज इनिशियल पार्ट. इस पे हमारा धंधा भी चलता है. सबका चलता है ना. अगर हम एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएंगे तो शादी की डेट कैसे निकलेगी? शादी की डेट नहीं निकलेगी तो जूलर, कपड़े, फंक्शन, कपड़े, फ्लाइट्स, ये सब कैसे होगा? एक इंडस्ट्री पूरी की पूरी बाकी इंडस्ट्रीज को चलाती है. गोल्ड बिकेगा, फूल वाले का काम होगा. दिस इज हाउ वी डू. ऐसे ही एक पॉलिटिकल इलेक्शन होगा किसी स्टेट में तो स्टेट में पैसा आएगा, रैलीज होंगी, लोगों को काम मिलेगा, फ्लेक्स के बोर्ड होंगे, कहीं पे सत्संग हुआ तो अब खाने वाले को बिल मिलेगा. जस्ट लुक अराउंड. दिस इज हाउ यू ब्रिंग बैक मनी इनटू द इकोनॉमी बैक. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. अगर मैं आपको बोलूं कि स्किन पर वो आजकल वो कोरियन पैक चल रहे हैं, आप चावल को भिगो, पीसो, चेहरे पे लगा लो, आप लगाओगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं. लेकिन अगर आपके मुंह पे बड़े बड़े एक्ने हो जाए, वो दाग छोड़ दे और वो सेकुलर आते रहें तो आप चावल के पैक पर तो नहीं डिपेंडेंट रहोगे ना, आप जाकर डॉक्टर को दिखाओगे. सिमिलरली इट इज विद एस्ट्रोलॉजी. ऐसे कहीं कुछ पपीते और चावल के पैक होते हैं, लगा दिया, अच्छा लग रहा है, टाइट लग रहा है, सब चमक रहा है, मुंह धो और चलो. जब कोई प्रॉब्लम है, when it is something which is really disturbing your life, then go and see an expert. Otherwise पपीता चावल लगाते जो क्या प्रॉब्लम है? But I know people who are obsessively watching these monthly horoscopes. Is it of use? If it makes you feel good or if it tells you to work harder,
अगर ये ठीक काम कर रहा है, अगर माँ की दाल स्वादी तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर माँ की दाल बादी तो बंद कर दो. What result is it giving you is the whole point you need to ask yourself. कई लोग पढ़ते हैं बकवास, अरे मत पढ़ो. Why waste 1.5 minutes of yours? Bring value to everything that your eyes and ears goes on. Right. Why do you think a lot of young people, shortly after entering their career, they want to be extremely successful? मतलब एकदम ही सबको तुरंत ही करोड़पति क्योंकि बन जाना इंस्टाग्राम है. पे डालेंगे क्या? अब इतनी सक्सेस स्टोरीज हो रही हैं, अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं तो आई हैव दिस फोमो, so it is what we want to put it for others. I have seen people stupidly putting post for their anniversary. आदमी साथ बैठा है, उस समय फोटो डाल रही हो शाम 12 बजे, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, आई एम सो हैप्पी टू हैव You're not telling the person next to you. मतलब उसको पहले बोल दो ये कल सुबह चला जाएगा. So there is no quality left for internal communication. It's more external communication. I see people sitting with families, everybody on their phone and so-called family dinner. Connect ही तो कर रहे हो, बाहर मत करो, अभी वाले से करो. That right now movement should not be lost because of social media. Like if I'm sitting on a dinner table or if we have me time with my family, nobody will touch phone. Keep it here, throw it there if there is no emergency. कहीं आग लगेगी तो फोन आ जाएगा, मैसेजेस में कुछ नहीं होता. So one has to set a rule right कि मुझे कनेक्ट ही तो करना है. मैं बाहर 50 लोगों से करूं और यहाँ 5 से ना करूं. Does it make any sense to you? Physical connect will always be superior than a technical or a virtual connect. Stick to where we are. Right. Right. And why do a lot of people, young people, start feeling that they're behind in life? मैंने ये अचीव नहीं करा, मेरे साथ आधी नहीं चीजों के कर लिया. फिल्टर है, फिर चाहे वो फोटो हो, खाना हो या सक्सेस हो. दूसरे का देखकर हमें ज्यादा तकलीफ होती है. हमें लगता है उसने तो अचीव कर लिया, मैंने नहीं किया. मार्क जुकरबर्ग इस एज में बिलियनियर बन गया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया. Success stories should inspire you. It should not depress you. Right. Everything that you look at after every 10 minutes of social media absorption that I do, I bring myself to pause after every 10 minutes and I ask myself, how am I feeling? If I'm feeling happy, if I'm feeling inspired, if I'm feeling elated, I will absorb that content. If not, then I know it's time to shut. There's something going wrong. Check on yourself. जैसे थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक करते हो, हर एक घंटे बाद अलार्म लगाओ अपने फोन पर. चेक करो how are you feeling. Reconnect with yourself. Get back to 1 minute of affirmation, half a second of gratitude. Doesn't matter. Come back to the core and see how you evolve and grow in life. Okay, I'll ask you a question that perturbs me sometimes. I want to check on myself. Trust me. But then, बॉस की कॉल आ रही है सुबह उठते ही, 5 मैसेजेस पड़े हैं अनअटेंडेड, ब्रेकिंग न्यूज पड़ी हुई है जो जानी है, फिर 9 बजे कॉल है, मीटिंग है, फिर ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस में लोगों को समझाना है क्या करना है क्या नहीं करना, एक और कॉल है 1 बजे. इस सब के बीच में what you are saying, how do you check on yourself, Pam? मतलब is it practical advice to say कि So, do you don't go to washrooms in between? Do you take a loo break? Yes, you do. Do you eat in between? yes, और 15 मिनट पहले उठ जाओ. The moment you start giving excuses to your mind, it doesn't take you seriously. That's one thing our brain hates is excuses. There is always everybody in life, even if it's a prime minister or a president, has 30 seconds every 1 hour to get back to yourself. And this is maximum what you need. If you give honestly yourself 30 seconds after every waking 1 hour that you have, you'll be enough evolved and conscious as a person that you need to be. I mean, nobody's that busy for it. so you're saying catch a break whenever Not catch a break. Every 1 hour later, In put a an alarm. The moment the alarm rings, whatever you're doing, take a pause for 15 seconds and come back to yourself. How am I feeling? What am I doing? And say one affirmation. That's it. okay, Even in the middle of a meeting, बच गया, वो बोल रहा है 15 सेकंड के लिए, come back to yourself. right. You have a young daughter, she's 21, you said. What is that one advice you've told her that she must follow, like through her life, through different phases of her life? What is that one thing? Be like others can also listen to it and Well, I really groom her and she's coming out like a fine lady. That's what I'm trying. So she practices a lot of different activities. And I believe for children, it's very important for them to balance their left brain and right brain. She's an early riser. She sleeps by 10:30. She handles 3 different businesses that we have. She handles all of them. 18 साल के बाद उसके कमाना शुरू कर दिया पढ़ाई के साथ में, because I feel it's very important for children
to understand the value of money, not their parents' money. So she practices a lot of physical sports like riding, pickleball, and tennis. She regularly plays. And she also does a lot of music. She learns piano every day or sitar either banata hai. So that left and right brain activity just brings your brain to great balance of analysis and also about creativity. तो मुझे लगता है आपको अपने बच्चे को लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ सर्टेन डे जरूर कराना चाहिए सो दैट दे क्रिएटिविटी आल्सो ब्लॉसम्स एंड दे बिकम एनालिटिकली आल्सो वेरी स्ट्रांग टू बी आउट इन द वर्ल्ड. And one thing I keep telling her is that never learn or train your brain to compromise in life. If you don't like something, learn to be without it rather than compromising it. Because once your brain adjusts to compromise, देखो लाइफ में हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करता है, पैसे में, करियर में, जॉब में, खुशी में, क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग उसका स्टेट ऑफ नॉर्मलसी बन जाता है. वो कभी मत होने तो स्टेट ऑलवेज दैट दिस इज व्हाट I don't like and I will not take it. So similarly, if you have bad friends, choose to be in solitude. Have your company and enjoy it. Don't be with wrong people just because you need people around. In any situation, I try her and tell her that don't compromise. Be stronger and come out of it, even if what it takes. So I try and bring that incorporation into world, jitni aa jaye. Right. So younger people should try to not tell themselves that they will fall in that loop of compromising. Correct. Sometimes we are in relationship with someone, हमें कहीं ना कहीं उससे दिक्कत लग रही होती है, हम कहते चल छोड़ जाने दे, इसको बुरा लग जाएगा, इससे ये वाली बात मत करो, ये भी सह लो. What for? Sit and talk and say this is something I don't like, and if you can't do things that I don't like, and either see, when I have a disagreement with anybody, whether it is my staff, it is about a meeting I take, it is about my daughter, everything, I give 2 minutes to myself and them in a conversation. So 2 minutes. 1 minute आपका, 1 minute मेरा. Either you convince me or I'll convince you and we close the chapter. There's no further discussion about it. So one has to understand that, there's no need for compromise. Yeah, आपका mindset change हो जाएगा and मेरा mindset change हो जाएगा. उसके बाद तय कर उसको सुलझा कर ही उठेंगे. I don't carry those baggages and I'm trying and training her to be like that. Like I don't have longer meetings, sometimes 5 minutes, 3 minutes, 1.5 minutes. So come to the point. This is my point. Tell me right, wrong, what is your opinion? Explain it to me or I'll explain it to you, and before we end the call, we'll decide this is right or this is what we followed. Matlab, without your egos and with completely openness, that is how every relationship situation should be adhered to. Even if your boss yells at you and says something, sometimes I do that, my people, and I told them कि अगर मैं कोई बात बोल दूं जो तुम्हें ठीक ना लगे, क्योंकि मैं बोल दूंगी उस समय, immediately after 5-10 minutes, come back to me, tell me आपने बोला ये ठीक ही बोला, and most of them do that, and they come and do that and tell them I'm sorry, this is not what I should have said, and I'll try not to repeat it, and I'll try not to repeat it. So there has to be an understanding for everybody getting you right to correct you, and you should be giving that space to everyone कि sometimes they tell me ये ऐसे ठीक नहीं था, ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, and I adhere to all of it because this is the right that I have given to all of them कि देखो जब कुछ गलत हो ना तो मुझे बता देना. So why compromise? Neither they, neither me. In every situation, communicate. Compromise can be completely taken over by communication. If you rightly communicate, keeping your egos aside and your frictions aside, it is so simple. And ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी, उनसे होगी, हमसे होगी, अगली बार मत करना, नहीं गलती करना, same मत repeat करो. This is what it is. But those people who you give the right to say something, how do you choose them? Because not everyone should have the right to tell you what you must do, right? So we all have layers of people around us, The first layer is our family, जिससे भी हम connect होते हो. Could be your parents, your sibling. So similarly, I have my layers. There's 1 layer, there's layer 2, there's layer 3. Layer 1 people know where emotionally what I'm going through. The layer 3 people will just say a career aspect of me or a physical presence of appearance of me. So everybody has their own arenas to look at me, judge me, and get involved with me. तो उनको उसी arena की right है. What is your advice to a young person who is probably watching somebody their age make far more money because they are a YouTuber? Should they just, what should they tell themselves? How do they have more confidence in what they are doing and pivot in the right direction? As you grow in life, you realize that schools don't make good students. It's good students that make a school popular. And palaces don't make kings. Kings makes palaces.
Similarly, brands can't make you popular. You make brand popular. If a Louis Vuitton is taking, say, like a C grade Hollywood actress as a brand ambassador, it will not be considered Louis Vuitton at that point in time. So it's the brand ambassadors also in you that wear those brands, and we feel is justified there. अगर ऋतिक ने say टॉम फोर्ड की जीन्स पहनी है या सूट पहना है, सो दैट मीन्स टॉम फोर्ड एंड ऋतिक आर पैरेलल, तो ये सूट 7 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का हो सकता है. इट इज ऑल रिलेटेबिलिटी विथ पीपल, नॉट अ ब्रांड अलोन. अगर किसी ब्रांड को कोई कोई इंग्लैंड की क्वीन या कोई किंग ले रहा है या डचेस ले रही है, सो फॉर अस इट इज लाइक, ओ दे डू दैट, और अम्बानीज वेयर दैट, और दिस दैट. It's people who make the brands. Brands can never make people. So one has to see कि अगर मुझे किसी की ये 5 करोड़ की घड़ी पसंद आ रही है और मैं 50,000 की नौकरी कर रही हूँ, तो I'm going to make myself mad thinking about कि जितने का मैं घर लूंगी उतने की मैं घड़ी ले सकती हूँ क्या? Not every aspiration is for you to follow. One has to see that this is where I am. This is what I need to do, where I need to reach. And till I bridge the gap, let me find medium things to elevate myself. Like I have whatever I have in life, I've self-earned it. I've never taken money from my father or my husband or anything. And I'm still very fond of finer things in life. My first Louis Vuitton bag I bought, उससे पहले मैंने अपने लिए गाड़ी ली. क्योंकि अगर मैं रिक्शा से और ऑटो से निकल रही हूँ और मैंने उस जमाने में भी 1.25 लाख का बैग लिया था, और डेकेड्स बैग, तो वो असली में अपनी नकली लगने लगेगा. So build up the right story around you. You need to have your basics to have and go over and above your basics. आप किराए के घर में रहकर अगर 1 करोड़ की घड़ी भी पहन रहे हो तो आप जैसा कोई बेवकूफ नहीं है. This is the kind of money that should give you equity first. It should give you fixed income. It should give you stability. After stability, pleasures and leisures come in life. Never go by wrong way. ऊपर से नीचे नहीं आया जाता, नीचे से ऊपर जाया जाता. Foundation strong. Correct. अपना बेस कर लो, फिर जो मर्जी करते रहेंगे. So Dr. Madan, now I have a luck or a myth section, and इसमें हमारे पास कुछ जो बहुत ही कॉमन ऐसे myths या फिर आप बताइए क्या बोलते हैं उनको, है ना, कि काली बिल्ली रास्ता काट गई. नहीं, ये मिथ है. बिकॉज ये इजिप्शियन टाइम से है, जब लोग वॉर्स पे जाया करते थे, बिकॉज वहाँ पे कैट्स बहुत होती थी तो उन्हें आसपास रखती थी. एंड कैट्स आर वेरी सेंसिटिव मूवमेंट एंड लैक ऑफ स्लीप. तो जैसे ही कोई आपके यहाँ चोरी करने या ट्रेसपास के लिए आता था, घर अलग अलग जगह पे होता था, तो बिल्ली इंस्टेंट निकलकर यहाँ से वहां मूव करती थी बिना शोर मचाए या हल्का सा म्याऊं करते हुए. तो इसका मतलब काली बिल्ली रास्ता काट गई, मतलब कि कुछ हो रहा है. कुछ हो रहा है. देयर इज अ शैडो ऑफ अ cat falling, and also there is some movement which is happening. She's trying to warning it off. That's where it started from. So it's a myth. Of course. Okay. नींबू मिर्ची जो लोग लगाते हैं. So nimbu is considered to absorb basically alkaline है. तो alkaline क्या करता है, सारी acidity को ले लेता है. acidity मतलब things that you cannot digest. तो नींबू is considered खट्टा because आपकी जो मेरे मन की खटास है, या आपको जो मुझे देखकर जलन लग रही है, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, राइट? तो जो आपको जलन है which represents मिर्ची, और जो आपको मेरे से खटास है, यानी कि जो आपको मेरे से इरिटेशन है, या जो आपको है ना कि इसने मेरे साथ ये नहीं किया, ये जो आपके ग्रजेस इज द राइट वर्ड, ग्रजेस. तो वो जो आपके ग्रजेस और जो आपकी जेलसी है वो इसने अब्सॉर्ब कर लिया और मैंने चेंज कर दिया. इट्स अ वे टू डाइवर्ट द एनर्जी. तो पहले के टाइम पे तो बड़ा बड़ा लगाया जाता था, सो दैट आपकी नजर पड़ी और आप जो घर को और बाकी चीजें, खराब चीजें सोच कर आ रहे थे, डाइवर्ट हुआ, एनर्जी स्टे किया और हमने चेंज कर. Okay. So there's a logic to it. देयर वाज एंड इज अ लॉजिक. Yeah. Evil eye bracelets. अगेन आप अटेंशन को यहाँ से यहाँ ले आए, क्योंकि वो दिखती है ना अजीब सी, ब्लू के अंदर वाइट डॉट और ब्लू डॉट, ऑल ऑफ इट. सो इट जस्ट ब्रिंग योर अटेंशन हियर कि इसने अब्सॉर्ब कर लिया, बाकी जगहों पे ध्यान नहीं किया. नजर बट टू बी फिर वही हो गया. करेक्ट. Lucky numbers. As per your date of birth and total of your date of birth, it works well. It brings you into a beautiful synchronity of things happening in a more comfortable way for you. Okay. And keeping different kinds of plants at home for different energies is Always, like different flowers and different fragrances have different effect on you. Similarly, different plants will have different energies to bring in and portray. जैसे शापर प्लांट्स का पर्पस होता है, कैक्टस का पर्पस होता है कि चीजों को दूर रख सके,
because it has so much of moisture content in it कि उसको अपने आसपास कांटे रखने जरूरी नहीं, तो जानवर खा जाएंगे जरा सा तो बेचारा Desert में होता है। डेजर्ट में होता है, तो उसका अपना पर्पस है. सो शार्प प्लांट्स आर टू ward off the energy. The rounder things are to accept the energy. तो हर एक डायरेक्शन का अपना पर्पस है, प्लांट की शेप का अपना पर्पस है, और उसको रखने का अपना पर्पस. ओके, कई लोग बोलते हैं कि गोल्ड पहनो, सिल्वर पहनो, इसको गोल्ड में पहनो, उसको सिल्वर में पहनो. रीजन बिहाइंड इट. So gold is to elevate the energy. It activates your Pingla Nadi. And silver is to calm down the energy. It activates your Ida Nadi. तो जब आपको एनर्जी को उठाना हो तो आपको गोल्ड करना चाहिए. जब आपको एनर्जी को काम, कंफर्टेबल, सूदिंग करना हो तो सिल्वर. मैं गुस्से वाली हूँ तो मुझे सूदिंग सिल्वर में दो. स्लीपिंग डायरेक्शंस में लोग बहुत फॉलो करते हैं, ईस्ट की तरफ सर करके सोएंगे. सो अर्थ की मैग्नेटिक डायरेक्शंस के हिसाब से जब आप नॉर्थ में सिर करते हो तो आपको अर्थ की मैग्नेटिक डायरेक्शन पुल करती है आपके ब्लड फ्लो को, तो इट क्रिएट्स मोर ऑफ हेडेक. तो जब आप साउथ में सर करके सोते हो, इट इज अ मोर कामिंग इफेक्ट फॉर यू टू फॉर अ बेटर एंड अ साउंड स्लीप. Okay. So now I have a list of people. Okay. And I want you to, obviously you'll know what they look like. Decode their energy. Okay. Virat Kohli. I think he's firebrand. You know, he's like go get up. Okay. Narendra Modi. I think he is the most blessed person I would have ever seen in my life. There is something beyond him works for him. Elon Musk. I think he has mentally he's an alien. He considers himself not from this planet, which is so evidently visible that he wants to create a more race by creating more and more children. 13, 14, I don't know how many he has. 13 I think. Yeah. पता नहीं अभी एक आधे दो और भी चल रहे हो पाइपलाइन में. क्या पता. हाँ, so there's no number that goes to waste, like a Aryabhat race coming out. So, but I think that he has a very big, deeper purpose to be on Earth, which he hasn't found yet. Okay. All right. That's interesting. विजय जो अभी रिसेंटली तमिलनाडु के हीरो जो भी बने, हीरो ही है वो. हीरो ही है वो. हाँ. मेंटली उसका जीतना, जैसे वो नायक मूवी नहीं थी, he's like a hero. Yeah. Vaibhav Suryavanshi, he had a hugely successful स्टार. जब किसी में पोटेंशियल होता है ना, तो आपको वो कहते हैं ना, पालने के पूत के पाँव पालना ही दिख जाते हैं. मतलब आपको वो उसके जवाब, उसकी इतनी शार्पनेस, यू नो, दैट जबान और हाथ दोनों के जो सिंक्रोनिटी ऑफ शार्पनेस एंड विटनेस, इट इज विजिबल, दिख जाते हैं. Mamata Banerjee. I think she's extremely strong, but again she's a rebel without a reason ना. मतलब कभी कभी लड़ने की जरूरत नहीं होती, शांति से काम हो जाता है. So I think she's just on a fight mode always. She's a fighter. Mukesh Ambani. I think he's one of the most accepting and comfort giving person to anyone. He's just like he accepts everything around him. Dr. Vedana, I have a funny question to ask you. What is it that you tell yourself when कुछ समझ में नहीं आ रहा होता? I sit, I pray, I meditate and I sleep. जब मुझे क्लैरिटी नहीं होती तो मुझे लगता है कि जागना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दो चार ब्लंडर जरूर होके. I immediately doze off. I shut down. I shut down this computer. Right. I think it's been a lovely conversation for me personally. I hope our viewers also get a lot of happiness also out of watching this today, because you touched upon so many simple tricks that can make life easy for a lot of overthinkers like me. So thank you so much, Dr. Madan. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.